Hello everyone, a very good evening. So, in our series of trigonometry, the next chapter that we are going to start today is applications of trigonometry, and the application that we are going to study specifically is heights and distances. So, trigonometry में जो हम next chapter start करने वाले हैं वो है applications of trigonometry, और जिस application को हम specifically पढ़ेंगे या फिर जिस पे हम ज़्यादा emphasis देके पढ़ेंगे वो है heights and distances. True? Now, when we see this topic, this chapter is directly not included in IIT syllabus, but we have this as a part of our CBSE curriculum. ये chapter CBSE के curriculum में included है, but JEE के syllabus में as such directly included नहीं है. But अब एक बात समझिए, IIT JEE के syllabus में trigonometry as a major topic included है, and when you see what is heights and distances, it is nothing but applications of trigonometry. So, if you know trigonometry, we should know what is the application of trigonometry. So, indirectly इस topic पे questions पूछे ही जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे. So, a judicious decision would be not to skip this topic, and as it's not a very big topic, it has got limited concepts. Plus, we are not going to develop any new concepts here. जो concept आपने trigonometric functions and ratios में पढ़े थे, solutions of triangles में पढ़े थे, inequalities and equalities में पढ़े थे, same concepts we are going to use here. We are not going to develop any new concept, but understand one point. What we are going to study is we are going to study how to apply those concepts. That is what we are going to study in this chapter. Okay. Now let us emphasize on this application here, that is heights and distances. Okay. So if you remember our initial lecture, मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ था. हमने देखा था लॉन्ग बैक, एंड व्हेन आई से लॉन्ग बैक इट रिफर्स टू द डेट व्हेन इवन आवर सोलर सिस्टम वाज नॉट कंप्लीटली डिस्कवर्ड. हम तो यही समझते थे कि जो अर्थ है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी सारे प्लैनेट्स और सन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. उस वक्त हमने हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन किया था. उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन किया था ताकि वो अर्थ से बाकी सारी हेवनली बॉडीज का डिस्टेंस मेजर कर सके. सो वी अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री वाज डेवलप्ड लॉन्ग बैक, एंड व्हाई वाज इट डेवलप्ड? इट वाज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मेजर डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज, या फिर किसी भी दो हेवनली बॉडीज के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन हुआ था. ट्रू? अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था कुछ इस तरह का. हमने कहा था लेट अस से ये हमारा सन है और हमने कहा था अर्थ पर बैठा कोई इंसान जब सन को देखता है तो वो थीटा एंगल सबटेंड करता है. Whenever a person watches sun, it subtends an angle of theta, or sun subtends an angle of theta on the eye of an observer on earth. Then we used to know कि earth से sun का distance है d. Based upon these informations, we were asked to find the radius or the diameter of sun. True? Do you remember ये question हमने कैसे solve किया था? हमने कहा था जब theta बहुत छोटा होता है, in such cases when theta is very small, or I'll say when theta tending to 0. So when theta is very small, I can write this as limit theta tending to 0. We saw sin theta upon theta is equals to 1, which means sin theta is approximately equals to theta. And since we understand the distance of earth from sun is very large, ओके, सो इस केस में अगर आप इस केस में साइन थीटा लगाएंगे भी तो वी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज गोइंग टू बी. देखिए अगर इस केस में मैं साइन थीटा लगाऊं भी तो व्हाट इट इज गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी आर अपॉन डी. ट्रू? सी, मैं इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऑलमोस्ट सेम मान रही हूं, इसीलिए मैं कह रही हूँ साइन थीटा अपॉन थीटा, तो r अपॉन डी वुड बी इक्वल्स टू थीटा. लेट अस से दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, and this point is B. So basically what I am telling is OA
इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ओ बी, ट्रू, और इसीलिए हम लिखते हैं साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा। ओके, सो r अपॉन d यहां से मुझे मिल जाएगा थीटा, d इज द डायमीटर ऑफ द सन, और इसके बेसिस पे हम डायमीटर ऑफ सन निकाल सकते थे। ट्रू, ये पॉइंट सबको क्लियर है? सॉरी, r is the radius of the sun, so I'll write here is 2r upon d, and d is the distance, and let me write r is the radius of sun, so 2r upon d will be equals to sin theta will be almost equals to theta। क्लियर है ये क्वेश्चंस, ये पार्ट सभी को? किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंसेस या रेडियस ऑफ हेवनली बॉडीज निकाल सकते हैं। ओके, सो वी अंडरस्टैंड कि लॉन्ग बैक ट्रिग्नोमेट्री वाज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मेजर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अर्थ एंड अदर हेवनली बॉडीज। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम हाइट मेजर करने के लिए भी कर सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे how trigonometry can be used as a tool to measure height of objects which cannot be measured physically। When I say which cannot be measured physically, आप समझिए, अगर मैं कहूँ ये चौक और मुझे इसकी हाइट मेजर करनी है, so what I'll do, I'll take a ruler और इसकी हाइट मेजर कर दूंगी। उसकी जगह अगर मैं कहूँ इस रूम के पिलर की हाइट मेजर करनी है, so what we can do is we can take a ruler and multiple times graduations के थ्रू हम उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। But now if I say I have कुतुब मीनार और अब मुझे उसकी हाइट मेजर करनी है, तो आप बताइए is taking a ruler and measuring the height or taking any measuring scale and measuring the height is a good idea? I'll say perfectly it is not. We have to find some other way, or in fact of that, in case of that, if you have Eiffel Tower, how will you measure the height? So ऐसी सारी चीजों की height measure करने के लिए the concept that comes is heights and distances। समझ में आया क्यों heights and distances हम पढ़ रहे हैं, या why heights and distances is a major application of trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सो लेट अस सी हाउ टू मेजर हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवन डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डिस्टेंस मेजर करने का एक एग्जांपल तो हमने अभी देखा, किस तरह हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके अर्थ या फिर किसी भी हेवनली बॉडी का दूसरी हेवनली बॉडी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, now even before understanding that I want you to get acquainted with few definitions। okay, so कुछ definitions जो मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी वो है line of sight, angle of elevation, and angle of depression। Okay, so let's first understand these definitions and then let us see कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट या डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल हियर। लेट अस से दिस इज अवर ग्राउंड लेवल। ओके, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे आई हैव अ स्टूडेंट, ही इज अ साइंस स्टूडेंट, मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ओके, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना सिखा रहे हैं और हम उसे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हाइट्स एंड डिस्टेंसेस समझा रहे हैं। सो दिस इज अवर स्टूडेंट। लेट अस से our this student is A B। okay, his foot on the ground is B and his height is at A। okay, his head is at point A। now we have a tower here। okay, we have a tower here, and what is the assignment of the student? Let us say the tower is C D। okay, now what is the assignment of the student? The assignment of the student is to measure the height of this tower CD। इस स्टूडेंट को असाइनमेंट दिया है कि उसे इस टावर की हाइट CD मेजर करनी है। एक तरीका तो ये है कि ये स्टूडेंट स्केल लेके टावर की हाइट मेजर करे, which is practically not feasible, so he has to find some other way। okay, so this is our student over here, जिसे इस टावर CD की हाइट मेजर करनी है। Now let me join A and C। okay, so I have joined AC।
द स्टूडेंट फ्रॉम ए इज सीइंग द टावर एट पॉइंट सी, क्योंकि उसे उसके टॉप मोस्ट पॉइंट तक की हाइट मेजर करनी है. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर हॉरिजॉन्टल surface. Okay, let us say this angle is theta. Okay, true, let us say this angle is theta. Now what is line of sight? Here I will say AC is our line of sight. Line of sight मतलब क्या है? It is a line which is joining the eye of an observer and the point on the object to be observed. Or I will say this way, the line from the eye of an observer to the point observed is said to be the line of sight. Okay, so what is line of sight? Line from the eye of an observer to the point being observed in the object is called line of sight. And in this case, what is our line of sight? In this case, AC is our line of sight. Similarly, let us say I am the observer and I want to watch, और मुझे इस चौक की हाइट मेजर करनी है, इस चौक के टिप की हाइट मेजर करनी है. सो मेरी आंखों से इस चौक को कनेक्ट करने वाली जो भी लाइन होगी उससे मैं क्या कहूंगी? लाइन ऑफ साइट. सिमिलरली, अगर let us take some other example, let us say I am the one, और मुझे यहाँ इस ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे अपना डिस्टेंस या हाइट मेजर करनी है, तो मैं यहाँ से ग्राउंड पे उस पॉइंट को देखूंगी. सो द लाइन जॉइनिंग द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज ऑन द ग्राउंड वुड बी कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. सो ऐसी लाइन जो आई ऑफ एन ऑब्जर्वर को, जिस पॉइंट को हमें ऑब्जर्व करना है उससे ज्वाइन कर देती है, उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं. नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन is the angle which the line of sight makes with the horizontal so it is the angle which the line of sight makes with the horizontal. But there is one more condition here. When the object being viewed is above the observer and we have to raise our head. So what is line of sight? It is the line join. What is angle of elevation? It is the line joining the line of, it is the angle which the line of sight makes with the horizontal surface. But what is the condition now? Condition ये है कि जो object हम देख रहे हैं वो हमारे ऑब्जर्वर से ऊपर होना चाहिए. दैट इज उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें हमारा सर ऊपर करके देखना चाहिए, तभी हम उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे. इस केस में देखिए, द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल when the object being viewed is above the observer. So C is above our observer A and the observer has to actually raise his head to see the object. तभी इसे हम angle of elevation कहेंगे. And what is angle of depression? Is the angle again which the line of sight makes with the horizontal when the object is below the observer, or I'll say when the object being viewed, let us
the object being viewed is below the observer and we have to lower our head. तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वर को अपना सर ऊपर करना पड़ा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वर को अपनी आंखें नीचे करनी पड़ी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा था कि मैं इस ग्राउंड पे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हाइट मेजर करना चाहती तो मुझे अपनी आंखें नीचे करनी पड़ी थी, तो इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा. लेकिन जब हमने टावर की हाइट मेजर करनी चाहिए थी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, बिकॉज टावर हमारी हाइट से ऊपर है और ग्राउंड हमारी हाइट से नीचे है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस से आई एम सिटिंग इन अ बालकनी. सो दिस इज द बालकनी ऑफ माई बिल्डिंग and here is my observer. Okay, now this observer, this is the balcony, okay, and this is our ground level. ठीक है, यहाँ पे there is a beautiful flower and what is this observer doing? This observer is observing this flower. Okay, so इस केस में क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. लाइन ऑफ साइट होगी, लाइन जॉइनिंग द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट बीइंग व्यूड. सो लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज सी. सो दिस इज माय लाइन ऑफ साइट and the angle which the line of sight makes with the horizontal is said to be angle of depression. So here this theta is angle of depression and here this theta is angle of elevation. This is my angle of elevation, this is my line of sight, here this is my line of sight and this is my angle of depression. True? So ये तीनों definitions clear है. What is angle of elevations, what is angle of depression and what is line of sight. ऐसी कोई भी लाइन जो ऑब्जर्वर की आंखों को जिस पॉइंट से कनेक्ट कर देख रहे हैं उससे कनेक्ट करे उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट. जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा अगर ऑब्जर्वर को अपनी आंखें ऊपर करके उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा अगर ऑब्जर्वर को अपनी आंखें नीचे करके उस पॉइंट को देखना पड़ा. सो आई होप ये तीनों डेफिनेशंस आप सभी को क्लियर है. नाउ यूजिंग दीज थ्री टर्म्स लेट अस ट्राई टू फाइंड हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ओके, इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं और इसी एग्जाम्पल को यूज करके देखते हैं कि अगर स्टूडेंट को इस टावर की हाइट पता करनी है तो वो किस तरह से करेगा. ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द सेम सिचुएशन. इस पूरे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता हुआ एक लाइन डायग्राम बना लेते हैं. सो लेट अस ड्रॉ लाइन डायग्राम. लेट अस से ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हमारा स्टूडेंट है ए बी, ये हमारा टावर है सी डी. ओके, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है ए सी, ये हमारा फिर से हॉरिजॉन्टल सरफेस है. दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा. लेट अस से दिस पॉइंट इज ए. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस टावर सी टी की हाइट पता करनी है. So basically we have to find this height capital H. और हमें क्या क्या पता है, इस हाइट को पता करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, या फिर मैं ऐसे कहूं. So what we should know is we should know this distance BD. Let us say this distance BD is D units. Okay. We should know this angle of elevation. So we should know this angle CAE, which is angle of elevation, which is theta, and we should know the height of the student. So let us say AE is equals to H dash, and what is it? It is height of student. So इन तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके, इन तीनों पैरामीटर्स को यूज करके हम CD, that is the height of tower, निकाल सकते हैं. अब देखिए कैसे. ओके,
Now we know this angle CAE. So what I can write is in triangle CAE, if I write what is sine theta will be equals to CD upon AE. Okay, what is going to be sine theta is equals to CD upon AE, CE upon AE, sorry. We know what is AE, we know AE is equals to D units because BD is going to be equals to AE. So I can write D into sine theta is equals to CE. Perfect. And I know AB is equals to ED is equals to H dash. Okay. So what is CD now? CD is CE plus ED. CE is nothing but D sine theta. True. I've done something wrong here. Instead of sine theta हमें tan theta लिखना चाहिए था. Okay. Tan theta यहाँ लिखेंगे तो here we will get CE is AE tan theta. Okay. So we get CD is equals to CE plus ED, and what is CE now? CE is AE tan theta, and what is AE? Just small d tan theta plus H dash. So what do I get is, we get CD which is equals to height of the tower, H is equals to height of the student plus D into tan of angle of elevation. So H is equals to height of the student plus D, that is the distance of student from the tower, into tan of angle of elevation. Similarly, अगर ये वाला केस हो तो अब मुझे पता है हम हाइट कैसे पता करेंगे. Almost the similar case we have to find. Okay. Now let us say what we'll do is, हमें ये पूरा distance H पता करना है. ठीक है यहाँ पे. And let us say we know this flower is blooming on a tree which has a height H dash. Okay. We know this flower is blooming on a tree which has a height H dash. So let us call this point as E. Let us call this point as B, this as C, and the bottom as D. Okay. So now in this case हम क्या लिख सकते हैं? Let us describe the angle as elevation, depression as phi in order to avoid confusion, क्योंकि हमने angle of elevation को already theta लिखा है. So इसे just for the sake of avoiding confusion, let us call it phi. Okay. So in this case, what would be tan phi? I know tan phi would be BC upon AB, and let us say this distance AB is equals to small d. ठीक है. हम कहते हैं डिस्टेंस AB जो है वो स्मॉल d है. सो आई कैन राइट d tan phi is BC, and what would be BD? It would be BC plus CD, and CD is H dash. So I know this height capital H would be d tan phi plus H dash. So अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम फॉर्मूला, जस्ट दैट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन व्हाट हैज बीन गिवन एंड व्हाट नॉट हैज बीन गिवन वी कैन फाइंड. अब समझिए, इसी केस में अगर हमें हाइट ऑफ द टावर दिया होता बट ये डिस्टेंस BD नहीं दिया होता तो इस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस D निकाल सकते थे. सो इन केस इनमें से एक भी वेरिएबल गायब हो तो हम दूसरा वेरिएबल उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं. और एक और बात समझिए, अब इसका एक स्पेशल केस, अगर मैं कहूँ H dash, that is the height of the student, or this height of the flower, it is very 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 small in compared to H. For example, here we are measuring a very big tower of height, let us say 100 meters, 105 meters.
and the height of the student is just like 1.5 meters, so it is almost negligible. So in such cases we can avoid h dash. जिन questions में दिया हो that h dash is very very small as compared to h, and h dash can be even neglected in this situation. True? ये समझ में आया? So हम एक बात समझते हैं कि जब भी हमें हाइट या डिस्टेंस पता करनी है, so एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन डू प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे मेजर करते हैं? क्या इसके लिए कोई टूल्स होते हैं या इनको मेजर करने की भी कोई स्पेशल टेक्निक्स होती है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज द होल ट्रिग्नोमेट्री हाइट्स एंड डिस्टेंसेस टॉपिक इज बेस्ड अपॉन दिस. अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करना नहीं आता तो फिर तो हम इसके आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते. सो मेजरिंग दिस एंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जाए? सी थियोरेटिकली तो दिया गया है, पर प्रैक्टिकली फॉर एग्जाम्पल मैं आईफिल टावर मेजर कर रही हूँ और मैं उससे 20 मीटर्स दूर हूँ, तो मैं कैसे पता करूंगी कि यहाँ से आईफिल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? या अगर मैं उससे 100 मीटर्स दूर हूँ तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे पता करूंगी? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स लाइक अ बिग पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर ऑल द साइंटिस्ट हाउ टू मेजर एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करने के लिए हमने दो स्पेशल टूल्स बना रखे हैं, थियोडोलाइट एंड सेक्सटेंट. इनकी हेल्प से हम एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करते हैं. सो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दीज टूल्स एंड हाउ डू दे हेल्प इन मेजरिंग एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉपिक. सो इन टूल्स पे एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं. ओके, आई होप ये सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा. लेट अस डिस्कस अबाउट सेक्सटेंट एंड थियोडोलाइट. ओके, कैन आई इरेज?